Let's talk about national updates with the violence that hit Bahraich during a Durga idol procession immersion, which is now generating shockwaves across the state as the political circles there, where day after a 22-year-old youth was shot dead in a communal face-off during the Durga idol procession, Bahraich immediately saw armed people indulging in arson and vandalism, even when it comes to several areas that were set ablaze, including ransacking of a hospital. लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है, ये देखिए इसके बाहर भी आग लगी है। ये मेडिकल स्टोर है और एक हॉस्पिटल है। ये कुर्सियां अंदर पड़ी हुई हैं। ये एक बड़ी आग बसो उधर देखिए कैसे जो है अंदर आग की लपटें उठ रही हैं और किस तरीके से अंदर जो है वो सब तोड़फोड़ हुई है। ये कुर्सियां देखिए आप जल रही हैं अंदर की, तो ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कुछ दोबारा हो पाएगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा घटनाएं हुई हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे देखिए ये तोड़फोड़ हुई है और धुआं अभी भी कमरों के अंदर से धुआं निकल रहा है। आग लगी हुई है, कमरों के अंदर से धुआं अभी भी भरा हुआ है, धुएं निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन है कि जो पूरा इलाका है अब एक बार फिर उपद्रवकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और आग की घटनाएं हो रही हैं। अंदर अस्पतालों के अंदर देखिए ये पूरा बेड है और इसके अंदर पूरा आग लगा दिया गया है। ये जल रहा है अंदर, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से। और चूंकि धुआं बहुत ज्यादा इस एरिया में भर गया है, तो एक कोशिश ये थी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल किया जाए, लेकिन यहाँ प्रशासन विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। Well, the FIR on part of the police, which is now registered in connection with the killing and the violence, that has also named 6 people in the FIR. Until now, 30 people have been detained so far. The state, which is assured the strictest possible action against the culprits, and has asked for the opposition not to politicize the matter owing to its sensitivity. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, बहराइच में प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, एक की मौत हुई। बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ दिया है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। हर स्थिति में बहराइच में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में जिन लोगों ने भी षड्यंत्र रच करके ये कुकृत्य किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये तय किया जा रहा है। अपोजिशन का स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि हार से बौखलाया हुआ विपक्ष है। इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। ऐसी घटनाओं पर तो मुझे लगता है कि राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि 2017 से पहले हमारी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। तब उनको लगेगा कि योगी जी की सरकार 2017 से जब से चली है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रहती है। और इस घटना में भी दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी, निश्चित आप अभी देखेंगे। However, seeking when it comes to and refraining from making any political situations, however, the opposition hasn't done that but has rather politicized it even further. The shocking statements that have come in, especially from the Samajwadi Party and its chief Akhilesh Yadav, he questioned the kind of music that was being played during the yatra, during the procession, and has blamed vote bank politics and the BJP before the by-polls. And his party officials handle on X wrote that if Hindus don't die, how will communal politics take place? Yes, exactly the statement that is now coming is the Samajwadi Party has attributed this tragedy that they have been calling it to the BJP and calling it, as far as the clashes are concerned, the main reasons just before the elections. However, there has been absolute lack of condemnation for the brazen killing of a Durga devotee, and almost when it comes to contemptuous disregard for a Bhakt who's been brutally shot dead, and turning a deaf ear to the ordeal of Ram Gopal's family, the torture that he underwent. As far as his family is concerned, they have been seeking justice. माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, गोली से कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। थी धारदार कुछ चक्कू या कुछ माजुद्दीन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे
क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं।